بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانک کے دیکھ سکے کہ ہنتاتن کا کیا مطلب ہے۔ میڈم نے لکھوایا ہے مگر اس نے کچھ نہ لکھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی تو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتاتن یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانتی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہو، کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کے دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک سکارف میں مفید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ بہمل اسی طرح تھی کہ سخت نظروں سے اسے دیکھ گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کنکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مقر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مقر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یکلخت چونکا۔ وہ اسی طرح سے چپتی نگاہوں سے دیکھتی، واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں، تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا، آغا جان بے تکلفی سے کہہ کر غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس، اتحاد طئی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکناچور ہو گئے تھے اور اب وہ مزید طئی کی خوشامدیں کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر طئی مہتاب کو جو الگ سی گمسم بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اچانک وہ اس پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ وہ خالی ٹرالی اندر لائی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کپ بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل؟ ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ازاں تھی وہ؟ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیپ صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیپ کو رگڑتا ہاتھ رک گیا تھا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بیچے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل حسن بلا رہا ہے، میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں۔ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا۔
इन्हें जो कहना है यही कह ले, मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक कसम इस उतरती फजर में इसने खाई थी, वो कसम इसे अब आखिरी सांस तक निभानी थी। महामल तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबस से इसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। इसने गर्दन उठाई। वो इसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। महामल का चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकते हैं। इसने आलूओं की टोकरी करीब खसकाकर मेज से छुरी उठाई। वो चंद लम्हे बेबस इसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसरत उलझी सी इसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त में बना दूंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन से आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर स्लीव साफ करने लगी। वो जानती थी अब वो नहीं बताएगी, और वो आलू छीलते इस अजीब बात को सोच रही थी जो सुबह इसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों यतीमों के साथ उसने सलूक की आयतें पढ़कर तड़प गई थी और पूछा था कि ये लोग यतीमों का माल खाते हैं, इनके लिए सजा बताई गई है। यतीमों से पहले कराबतदारों का जिक्र है। महमल, मैं और मेरी माँ इन कराबतदारों की जैसे खिदमत करते हैं आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का कभी इनको एहसास भी दिलाया? अम्मा तो हर वक्त जुटी रहती है, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। वो एक कहें तो 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊं। इसने फखर से कहा और फिर फरिश्ते का संजीदा चेहरा देखा तो लगा कुछ गलत कह दिया है, यानी सब किया कराया मलियामेट कर देती हो। ये तो इन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ इन पे? वो शौक रह गई। जुल्म की तारीफ क्या होती है? किसी के हक में कमी करना, एक की एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर 9 ऊपर सुनाना ज्यादती है। इसके हक में कमी है, वो मुझे जो बोल दे और मैं आगे से चुप कर जाऊं, एक भी ना सुनाऊं। तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, फिर तुम इनके ये शिकवे किसी से करने की हकदार नहीं होगी। माफ कर दिया करो। और जानती हो माफ करना क्या होता है? इसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। इसको दुख ना देना जिसने आपको दुख दिया हो, इनको इनके रवैये का एहसास तक ना दिलाना, कुछ ना बताना, ये माफ करना होता है। तुम माफ कर दिया करो, सब्र किया करो। सारी जिंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पे भारी पत्थर भी लग जाए तो लबों से उफ तक ना निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है। और एहसान, सब्र और माफ करने के बाद इनके बुरे रवैये के जवाब में बहुत अच्छा रवैया दो। मैं क्यों करूँ ये सब? वो क्यों नहीं करते? रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसा वो हमारे साथ रखते हैं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा करते थे कि बदले की सिला रहमी करने वाला सिला रहमी नहीं करता। मामल, इस पे तो आपको अजर ही नहीं मिलेगा। अजर तो तब मिलेगा जब आप बुरे के जवाब में अच्छा करें। तुम इन्हें माफ करो और अपना हक अल्लाह से मांगो। उन्होंने मेरी जायदाद खाई है। वो चीख पड़ी थी। अब्बा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए थे, बहुत गलत करके गए थे। फिर इन्हें हक ही नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी वसीयत करते। इनका हक तो बस 1/3 पे था। इसको बेशक किसी के नाम वसीयत कर जाते, मगर बाकी के 2/3 हिस्से की शरण तकसीम की इजाजत दे जाते तो शायद तुम्हारे चचा लोग अपने हिस्से पे कनात कर लेते। वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, जाने वाले को बुरा भला नहीं कह रही, मगर एक गलत फैसला बहुत सौ की जिंदगियां खराब कर देता है। महमल, तुम कुछ लोगों के गलत फैसलों को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करोगी तो ये मत भूलो कि पुल सिरात पर रहम और अमानत के कांटे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर खाइन और कतई रहमी करने वाले को पुल से नीचे जहन्नुम में गिराएंगे, और हर अमानतदार सिला रहमी करने वाला पुल पार करके जाएगा तो वो पुल पार नहीं करना चाहती। वो सर झटक कर तेज तेज आलू छीलने लगी। मैडम, मुझे एक बात पूछना है। उस रोज वो क्लास के बाद मैडम मिसबा के पास गई थी। जी जरूर पूछिए। मैडम बहुत तवज्जो से इसकी तरफ पलटी थी। वो मैम, मुझसे नमाज पढ़ी नहीं जाती। तो खैर है? हाँ क्यों नहीं, खैर है, इट्स ओके। अगर आप नहीं पढ़ सकती तो। महमल को लगा मनोबोझ इसके कंधों से उतर गया। वो एकदम किसी कैद से आजाद हुई। वही तो मैम, मैं नेक बाकी नेकियां कर लूँ, कुरान पढ़ लूँ, ठीक है ना? नमाज पढ़ना बहुत जरूरी तो नहीं? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहती तो ना पढ़े। मैम, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कतन फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी पे है। ओह ओके। वो बेहद आसूदा सी मुस्कुराई। मगर मैडम मिसबा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यकीन करें महमल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आप बेशक नमाज ना पढ़े, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियाँ इसके पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। अगर आप कर लें, इसे क्या फर्क पड़ेगा? इस आसमान का बालिश भर भी हिस्सा खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। और फरिश्ता जानती हैं कितना बड़ा हो सकता है? जब इस पहाड़ पर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पुकारने पे पलट कर देखा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कद जमीन से आसमान तक था और इनके पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबे का रोज तवाफ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज तवाफ करते हैं, इनकी बारी में फिर कयामत तक नहीं आएगी। इस रब के पास इतनी लातादाद हस्तियां हैं इबादत करने के लिए। आप नमाज ना पढ़ें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैडम मिस्बा जा चुकी थी और धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साकित से खड़ी थी। इसको लगा वो अब कभी नमाज छोड़ नहीं सकेगी। शाम में इसने बहुत एहतमाम से असर पढ़कर लाउंज में फोन स्टैंड के साथ बैठी ही थी कि नादिया को फोन करे। नैमा चच्ची मास को कान से पकड़े बेबस सी डांट रही थी और वो कान छुड़ाकर झपाक से मुंह चढ़ाता भाग गया था। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका। वो कमर पे हाथ रखी परेशानी से बोली। मोहम्मद की फोन नंबर प्रेस करती उंगलियां थम सी गई। शैतान हो गया है ये लड़का, इसने जेर लब दोहराया। लब शैतान का रूट वर्ड क्या था? शीन त्वा नून शैतन, यही यानी रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर। धुतकारा हुआ और गौर उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर हुआ कह दिया। चच्ची, इसने हौले से उन्हें पुकारा। फोन का रिसीवर अभी तक इसके हाथ में था। हाँ, नैमा चच्ची ने परेशानी से चौंक कर इसे देखा। मास को शैतान तो ना कहें चच्ची, अल्लाह ना करे वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा बस करो, 2 सिपारे क्या पढ़ लिए, अब हमें सिखाएंगी ये। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस्तेज़ाइया कहती बाहर निकल गई और वो जहाँ थी वहीं सुन सी बैठी रह गई। सुबह ही तो दूसरे सिपारे की पहली आयत पढ़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ लोग कहेंगे कि इनको इनके किबले से किसने फेर दिया है, इनका तो किबला ही बदल गया है। वो तकरार इसके जहन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाली वो सैफ आम लड़की एकदम से याद आई थी। इसमें तुम्हारा माजी है, हाल है और मुस्तकबिल लिखा है। वो ठीक कहती थी। वो सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रेक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कतरे टप टप गिर रहे थे। इसके हाथ सुस्रवी से काम कर रहे थे। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जाने कहाँ थी। बाकी लोग तो काम के वक्त किचन में आना मिजाज के खिलाफ समझते थे, मगर खैर इसने सर झटका। वो अब कोशिश करती थी कि ऐसी सोचों को दिल में जगह ना दे। अब महसूस होता था कि इसने अपनी बदसूरत रवैये से अपने इनके दरमियान फर्क ना रखा था। पहले वो हर चीज इसी दुनिया में बराबर करने पे तुली थी, अब इसने सब्र करना शुरू कर दिया था। जिंदगी वैसे भी अब टफ हो गई थी। अब मस्जिद की टीचर्स ने इसे देर से आने पे अल्टीमेटम दे दिया था। वो खुद भी अपनी तजवीज दुरुस्त करने फजर के बाद आना चाहती थी कि तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीज की प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ ये मसला था कि फजर के वक्त फ्रिज लॉक होता था। इसके लॉक होने पे भी किसी पे असर ना होता था। इसके पास अपने नाश्ते के पैसे ना थे। या तो वो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता ला कर रखती। सो नाश्ता कुर्बान करके इससे वैन वाले को फीस दी और रोज सुबह तहज्जुद पे उठकर वो आधा घंटा अपना होमवर्क करती, फिर फजर पढ़कर निकल जाती। असर के करीब इसकी वापसी होती। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे इल्म फिक्र फाका के बगैर नहीं आता। ठीक ही कहते थे। इसने आखिरी प्लेट रेक पे रखी, टूटी बंद की और हाथ खुश करती अपने ध्यान में पलटी ही थी कि किचन के खुले दरवाजे में किसी को खड़ा देख कर ठटकी और पूरे दूसरे ही पल साकित रह गई। कैसी हो? फवाद सीने पे हाथ बांधे मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो गंग सी बिना पलके झपक इसे देखे गई। ये कब वापस आया? तो मुझे बहुत याद आई महमल, मैं एक बहुत बड़ी साजिश का निशाना बना हूँ। अम्मा अम्मा, वो एकदम बुलंद आवाज में पुकारने लगी। खून उबलने लगा था। इसे महसूस हुआ इसका जिस्म कपकपा रहा था। क्या हुआ? मुसर्रत बौखला कर अंदर आई और फिर फवाद को देखकर चुप सी रह गई। फवाद बेटा तुम? चाची, वो इनकी तरफ बेकरारी से पलटा। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सब इस एसपी का किया धरा है। मैं भला महमल के साथ ऐसा कर सकता हूँ? महमल तुम? वो अब इसकी जाने मुड़ा। तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। रिकॉर्डिंग जो उन्होंने तुम्हें सुनाई वो इनके किसी फनकार की थी। हम इन पुलिस वालों को भत्ता नहीं देते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम याद करो, तुमने खुद कहा था कि तुम साइन करवाने चली जाती हो। मैंने अगर सौदा किया होता तो मैं तुम्हें मजबूर करता। वो एकदम चौंकी। वो ठीक कह रहा था, मगर आपने मुझ पे इल्जाम लगाया कि आपने मुझे रंगे हाथों। इससे आगे बोला नहीं गया। वो सब मुझे एसपी ने रात को कहा था कि मैं तुम्हारे और इसके दरमियान आने की कोशिश ना करूं। भला बताओ मैं ऐसा कर सकता हूं? फिर मुझे यकीन आ ही गया कि तुम जैसी बाकिरदार और पारसा लड़की ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरे घर के सामने तुम्हारे किरदार की कसम खाने को तैयार हूँ चाची, आप मेरा यकीन करें। वो बेबस सा मुसर्रत के पास झुका और इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप समझिए कि महमल मेरी वजह से बदनाम हुई है तो मैं महमल से शादी करने पे तैयार हूँ। आप जब कहें आखा जान धूमधाम से महमल को अपनी बहू बनाएंगे। आप हाँ तो करें, एक दफा महमल से मेरी शादी हो जाए
फिर होगी किसी को पूरे खानदान में हिम्मत कि वो महमल पे उंगली उठा सके। हम हर वो उंगली काट देंगे, अल्लाह गवाह है चची, हम ऐसा करेंगे। फवाद तुम सच कह रहे हो, पड़ते जज्बात से मुसरत की आंखों से आंसू उबल पड़े। वो जो साकित सी स्लीप का सहारा लिए खड़ी थी एकदम भागती हुई बाहर निकल गई। इसने रात का खाना नहीं खाया, बस सर मुंह लपेटे पड़ी रही। बाहर से चहल पहल की आवाजें आ रही थी, हंसी मजाक, बातें, शोर, कह कहे, दावत की तरह का समा, इश्तिहाअंगेज खानों की महक इसके कमरे तक आ रही थी, मगर इसका किसी चीज के लिए दिल न चाह रहा था। वो चितलेटी देर तक छत पे घूमते पंखे को देखती रही। तीनों पर गोल गोल घूम रहे थे, बार बार एक ही मदार के गिर्द चक्कर काटते। आखिर में वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। वो भी वहीं पहुंच गई थी। सुबह प्रेयर हॉल की कशादा सफेद सीढ़ियां मुनंगे पांव सुतरवी से उतर रही थी। सफेद शलवार कमीज के ऊपर पिंक स्कार्फ नफासत से ओढ़े, एक हाथ रीलिंग में रखे, वो जैसे पानी पे चलती गायब दिमागी से नीचे आई थी। प्रेयर हॉल के ग्लास डोर्स बंद थे, शीशों के पार ताजा सुबह उतर रही थी। इसको आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पे आई, बैग डेस्क पे रखा और गिरने के अंदाज में बैठी। अगर कॉलेज होता तो यकीनन वो आज ना आती। इतनी डिप्रेस हो गई थी कि वो पढ़ना सकती थी, मगर वो कॉलेज ना था, न ही वो पढ़ने आई थी, वो तो सुनने आई थी। बात चीजें इतनी हैरत अंगेज होती कि इंसान इन पे हैरान होना तक कर देता है। वो मौजूदा किताब भी ऐसी ही थी, आजिज कर देने वाली, मबहूत कर देने वाली। जो जो सोचती थी इस किताब में लिखा आ जाता था। अब महमल ने हैरान होना तक कर दिया था। इसे लगा वो अब कभी हैरान ना हो सकेगी, मगर आज की आयात पे फिर वो चौंकी थी। और लोगों में से कोई है, अच्छी लगती है तुम्हें इसकी बात दुनिया की जिंदगी के मुतालिक। इसने सर घुटनों पे रख दिया और बाजू घुटनों के गिर्द लपेट दिए, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लेता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। इसे सर उठाया, चेहरा दाएं जानिब घुमाया, पिंक स्कार्फ में मलबूल लड़कियां सर झुकाए तेजी से कलम पेपर पे चला रही थी। वहाँ कोई नहीं जानता था कि इसके दिल पे क्या गुजर रही है, कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या महसूस कर रही है। बस वही जानता था जिसने किताब इसके लिए उतारी थी। इसे कभी कभी लगता था ये बस इसी की कहानी है, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकता था। और लोगों में से कोई है, वो है। इसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से सहलाया। अच्छी लगती है तुम्हें। वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बन किया और कुछ भी लिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इसकी बात वो धीरे धीरे जीने चढ़ रही थी। दुनिया की जिंदगी के मुतालिक वो आखिरी जीना अबूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लेता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे के स्टेप्स पे बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था। वो सुकून से सर टिकाए लॉन के सब्जे को खाली खाली आंखों से देखे गई। ये तो इसने अपने दिल से भी ना कहा था कि इसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। इसकी आफर दिलफरेब थी, दिलकश थी। वो अपने दिल से इकरार करने से डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है। इससे कैसे छुप सकती थी कोई बात। मगर इसने इसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे। इसका तमाशा नहीं बनाया जैसे खानदान वाले बनाते थे। इसे नादिया करती थी, कोई डांट डपट लान तान नहीं, बस वही एक नम मेहरबान अंदाज जिसकी तड़प में वो कुरान सुनने आती थी। वो डांटता ही तो नहीं था, इसकी तरह कोई समझाता ही न था, कोई इसकी तरह था ही नहीं। वो वहीं बैठी थी जब साथ ही वो लड़की आ बैठी। गालबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां इसमें बैठकर तजवीज़ करती थी। वो थोड़ी हथेली तले रखे, चेहरा मोड़े यूं ही इसे देखे गई। वो लड़की घुटनों पे कुरान रखे बाएं हाथ से सफ़े पलट रही थी। दायां हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलूबा सफ़ा खोलकर इसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और गोद में रखा। फिर ठीक हाथ से सफ़े का किनारा पकड़े पढ़ने लगी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज़ टूट जाती। वो फिर से शुरू करती, मगर अखलाहट ज़दा ज़बान फिर साथ छोड़ने लगती। मखारिज सही ना निकल पाते। वो बवक्त तमाम एक लफ्ज बोलती तो साथ गां गां की आवाज़ भी आती। एकदम महमल को एहसास हुआ, वो रोने लगी थी। इसका मफलूज दायां हाथ बार बार नीचे गिर जाता। वो बाएं हाथ से इसे उठाती, फिर से तजवीज़ से पढ़ने की कोशिश करती। इसकी आंखें सुर्ख हुई और आंसू उबल कर गाल पे लुढ़कने लगे। वो बाएं हाथ से आंसू रगड़ती, दबी दबी सिसकियों के साथ फिर से कोशिश करने लगी। महमल गुमसुम सी इसे देखे गई। वो अपाहिज लड़की अपने अल्लाह से बात कर रही थी। वो इसका बहुत हमदर्द था। इसे महमल की हमदर्दी की इस वक्त ज़रूरत ना थी। लम्हे भर को भी इसे इस पे तरस ना आया था, बल्कि रश्क हुआ था। कोई ऐसे भी तरफ का कुरान पढ़ता है जिसे वो पढ़ रही थी, और एक हम हैं, बरसों इस मुसहफ को लपेट कर सबसे ऊंचे शेल्फ में सजाए रखते हैं
और बस सजाए ही रखते हैं। वो इसी तरह हथेली ठोड़ी तले जमाए गर्दन पूरी इसकी तरफ मोड़े पलक झपके बिना इसे देखे जा रही थी। वो फिर से हकलाती जबान से पढ़ने लगी मगर ठीक पढ़ा ना जा रहा था। आंसू टप टप इसकी आंखों से गिर रहे थे। दबी दबी सिसकों के दरमियान वो मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह कहती जा रही थी। आम सी शक्ल की अपाहिज लड़की से बेइख्तियार वो सियाफाम लंगड़ी लड़की याद आई। वो कितने को सहारे दिए हुए था और वो कितने बदनसीब होते हैं जो तिलावत की आवाज सुनकर कान बंद कर लेते हैं। कभी मैं भी इन बदनसीबों में से थी। वो आहिस्ता से उठी और सर झुकाए चल दी। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी अपाहिज लड़की इसी तरह रो रही थी। वो गेट बंद करके अंदर दाखिल हुई थी। लॉन में कुर्सियां डाले तकरीबन तमाम कजन बैठे थे। फवाद भी इनके साथ ही था। वो किसी बात पे हंस रहा था। शर्ट का ऊपरी बटन खोले कीमती रेस वॉच पहने इसके परफ्यूम की महक यहाँ तक आ रही थी। वो कुर्सियों का दायरा बनाकर बैठे थे। ये निदा थी जो इसकी बात दिलचस्पी से सुन रही थी, जबकि आरजू भी दायरे में लाताल्लुक सी बैठी थी और फायका भी। रजिया पुप्पो की फायका वो भी जैसे फवाद से एहतराज बरत रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई मेहताब जितनी ताबीलें पेश करती, फवाद की अहमियत अब वो ना रही थी। वो किताबें सीने से लगाए सर झुकाए तेज तेज चलने लगी। महमल वो बरामदे के स्टेप पे थी जब फवाद ने बेख्तियार पुकारा। इसने एक पाँव सीढ़ी पे रख के गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रुखे तासरात देख कर वो बरामदे का दरवाजा पार कर गई। लॉन में बहुत सी मायने खेज निगाहों का तबादला हुआ था। इसकी हिम्मत कैसी हुई ये मुझे सबके सामने बुलाए। माय फुट वो पैर पटकती अंदर आई थी। लाउंज में हसन नजर आया तो एकदम ठटक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल इसके कदम रुक गए मगर पलटी नहीं। तुम्हें फवाद की हर बात पे यकीन है, मुझे आप पे भी यकीन नहीं है। इसका गला रुंध गया था। तेजी से कहकर इसने दरवाजा खोला और फिर धड़ाम से अपने पीछे बंद किया। हसन ने तासुफ बेबसी से चंद लम्हे इधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसने चमचा हिलाकर पतीली का ढक्कन बंद किया, झुककर चूल्हा कदरे आहिस्ता किया और वापस कटिंग बोर्ड की तरफ आई जहां सलाद की सब्जियों का ढेर था। वो वहीं खड़े खड़े सर झुकाए खट खट सब्जियां काटने लगी। इधर हो महमल, रजिया पुप्पो ने अंदर जाकर। महमल ने सर उठाया। आज इसने पोनी नहीं बांधी थी और भूरे लंबे बाल शानों पे गिरे हुए थे जिन्हें इसने कानों के पीछे उड़स रखा था। जी पुप्पो, वो आहिस्ता से गोया हुई। ये महमल के अंदर एक वासी तब्दीली थी। वो पहले जैसे बदलिहाज ना रही थी, वरना पहले तो इसे मुखातिब करते हुए डर लगा करता था। मैंने सोचा जरा तुम्हारी कोई मदद करा दूं। उस औरत को तो भाभी ने दूसरे कामों में लगा रखा है, कोई तुक है भला। जब देखो बेचारी से काम ही करवाती रहती हैं। तो कोई बात नहीं पुप्पो, हमारा फर्ज है। वो नरमी से मुस्कुराकर फिर से सब्जी काटने लगी थी। ये फवाद रिहा कब हुआ? पुप्पो सामने काउंटर से टेक लगाए राजदारी से गोया हुई। मालूम नहीं। बड़ा जुल्म किया है इसने तुम्हारे साथ। मेरा तो मानो उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटती जा रही थी। आंखों में से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा दिल था मेरा अपनी फायका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि इधर आने को ही दिल नहीं चाहता। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के। महमल जाने दे पुप्पो, इन्नल्लाह पढ़ ले। फायका बाजी कोई कम थोड़ी है, वो किसी अच्छे बंदे के काबिल है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। इसे पुप्पो के आजादा चेहरे को देखकर दुख हुआ था। ये पहली दफा था कि वो इसके साथ यूं बात कर रही थी, वरना पहले तो दरमियान में महमल इतनी दीवारें खड़ा की थी कि इन्हें पाटना मुश्किल था। वो इसके अब्बा की एक ही बहन थी, वो क्यों लोगों से शिकायत करे। इसने खुद भी तो कभी बनाकर रखने की कोशिश न की थी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इसी लम्हे फवाद ने किचन का दरवाजा खोला। इन दोनों ने चौंक कर इधर देखा। महमल के लब भी सख्ती से भींच गए। वो तेज तेज सब्जी काटने लगी। महमल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारिग नहीं है, अपनी बहनों से कह दो। वो फारिग ही बैठी थी बाहर। पुप्पो ने निहायत बेरुखी से कहा। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ गया। हुक्म देखो कैसे चला रहा है, तुम जरा भी इसकी ना सुनना करो। मेरे भी कितने जवाब थे, हमें कोई कमी थोड़ी है। फायका के पापा के बिजनेस का तो हमें पता है, करोड़ों में खेलते हैं। इनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ पुप्पो, मैं बालिग हूँ और बलोगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में लीमू नचोड़ रही थी। हाँ तुम्हें पता है, अभी फायका के पापा ने नया घर बनवाया है। दूसरा घर तो फिर से फर्निश करके फायका को जहेज में देंगे। महमल की लीमू नचोड़ती उंगलियां थमी। ख्याल के पेश नजर इसने चौंक कर सर उठाया। पुप्पो, इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आपको मदद की जरूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है, आप अकेले कैसे करेंगी सब? नौकरों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं आ जाऊँ आपके पास, हेल्प करवा दूंगी। हाँ क्यों नहीं। पुप्पो तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई, तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर
कोई बात नहीं, वीकेंड है, फिर आपकी हेल्प भी तो करानी है ना। इसे फवाद से दूर रहने का यही तरीका नजर आया था। पप्पो ने फौरन हामी भरी, वो जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी। तैयारी क्या थी, 2 जोड़े रखे, चंद जरूरी चीजें, और फिर कुरान रखते रखते वो रह गई। कुरान तो वहाँ तर्जुमे वाला मिल ही जाएगा, 2 दिन की तो बात है, अब साथ क्या रखूं। कोई बात नहीं, इसने बैग की जिप बंद कर दी। पप्पो का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डब्बों में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फायका तो टीवी में ही मगन थी, डिश भी लग गई थी और वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। पप्पो ने इससे कुछ ना कहा, मामन ही सारी चीजें नफासा से सेट करती रही। रात 11 बज गए जब इसने आज के लिए बस की और फिर नहाकर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वजू किया और दुपट्टे पे सर पे लपेटे वो पप्पो के पास चली आई। पप्पो, आपके पास तर्जुमे वाला मुसहफ होगा? क्या तर्जुमे वाला? वो अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान होगा, इसने जल्दी से वजाहत की। तर्जुमे वाला तो फायका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था, तर्जुमे बगैर वाला होगा। अच्छा चले वहीं दे दे। किताबों के डब्बे से नहीं निकला, नहीं तो मैंने खुद सारी किताबें इधर रखी हैं, फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया हो, फायका से पूछ लो। वो फिर से काम में मगन हो गई। वो बेदिली से फायका के पास आई। फायका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वो उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, इन्हीं को पता होगा। वो मायूसी से खुद ही ढूंढने लगी। किताबों को रेक को फिर से देखा, एक एक चीज छान मारी, मगर कुरान ना था ना मिला। वो अपने कमरे में आई और अपने बैग फिर से खोला। शायद कोई मौजज़ा हो जाए और शायद इसने कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर वो होना तो मिलता। फिर से लाउंज में गई। फायका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी तिलावत की? नहीं, फायका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिस पे तिलावत आती हो? तंग मत करो महामाल, मैं मूवी देख रही हूँ। वो उकता कर रुख पूरा टीवी की तरफ मोड़ कर बैठ गई। मोहम्मद थके थके कदमों से वापस आई और फिर बेड पर गिरकर ना जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी नींद सोई। अगला सारा दिन काम करवाते वो मगमूम बेचैन रही। खाने के बाद भी चंद लुक़्मे ले सकी, इससे खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते इतवार के 2 दिन इसकी जिंदगी के जैसे बदतरीन दिन थे। इसका बस नहीं चलता वो उड़कर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रजब फुफ्फो का ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। वो अब इनके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी, घर से भी कोई नहीं देकर जाएगा। वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी से लेने आई। फिर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के, किसी से मिलने के, वो भागकर अपने कमरे में गई। शेल्फ पर बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान उठाकर सीने से लगा लिया। इसे लगा अब वो जिंदगी भर कुरान के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। लोग चाबी, बटवा और मोबाइल के लिए आते हैं, कुरान के लिए कोई वापस नहीं आता, ना जाने क्यों। महमल अम्मा पुकारती हुई आई तो इसने आंसू खुश किए और अपना मुसहफ को एहतियात से शेल्फ में रखा। महमल, ये लो। अम्मा ने दरवाजा खोला और एक खत का लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी डाक आई थी कल। मेरी डाक? इसने हैरत से लिफाफा थामा। मुसर्रत जल्दी में थी, लिफाफा देकर पलट गई। इसने उलझते हुए लिफाफा चाक किया और अंदर मौजूद कागजात निकाले। वो स्कॉलरशिप थी जो इसको दिया गया था, इंग्लैंड में आला तालीम का स्कॉलरशिप। वो बेयकीनी से देख रही थी। महमल, तुम्हारी डाक आई थी। क्या वो स्कॉलरशिप था? खाने की मेज पे आगाजान ने पूछा तो यकदम सन्नाटा छा गया। महमल ने झुका हुआ सर उठाया, सब हाथ रोक के इसे ही देख रहे थे। जी, इसे अपनी आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी। खुशी या जोश से खाली आवाज हूँ तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? आगाजान बात करने के साथ साथ चमचा कांटा प्लेट में खड़का रहे थे। बाकी सब दम साधे महमल को देख रहे थे। बिलाशुबा एक बड़ी खबर थी। सितंबर में तमाम अखराजात वही उठाएंगे। जी, वो भी जवाब देने के साथ साथ खाना खाने लगी। डाइनिंग हॉल में अब इसके चमचे की आवाज भी आ रही थी। वेरी गुड। इंग्लैंड में स्कॉलरशिप? महमल इंग्लैंड चली जाएगी? सरगोशियां चमगोइयां शुरू हो चुकी थी। इसने सर झुकाए खामोशी से खाना खत्म किया, फिर कुर्सी धकेल कर उठी और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से चली गई। इसे नहीं मालूम था कि वो खुश थी या ना खुश। इसे एक नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था। इसे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर ये नाखुशी, दिल डूबने का ये एहसास, शायद ये इसलिए था कि सूरत में इसे इल्मुल किताब और मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। कुरान की तालीम अधूरी रह जाएगी, लेकिन वो तो बाद में भी कर सकती हूँ। इंग्लैंड जाने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। इन्हीं सोचों में गुमनीन ने इसे आ लिया। सुबह क्लास में से पारा खोलते वक्त इसे उम्मीद थी कि आज के सबक में इसके स्कॉलरशिप के बाद की खैरात के मुताबिक आयात जरूर आ जाएंगी, लेकिन आज की आयत सूरह बकरा में बनी इसराइल के किसी कदीम किस्से की थी। ये पहली दफा हुआ था कि इसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था, और वह वाक़या जो बयान किया जा रहा था वो भी कदर नाकाबिले फहम था, बल्कि था नहीं। इसे लगा था वो स्कॉलरशिप भला कर इस वाक़े में उलझ गई। वाक़या कुछ यूँ था कि जब तालूत का लश्कर जालूत से मुकाबले के लिए निकला
तो रास्ते में आने वाली एक नहर में इनके लिए आजमाइश डाल दी गई। अल्लाह ने इस नहर के पानी को सिवाय एक चुल्लू के पीने से मना किया था, तो जो लोग पानी पीने गए वो नहर पर बैठे रह गए और जिन्होंने चुल्लू से पानी ना पिया वो आगे निकल गए। और इन्हीं में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल करके इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। पूरी तफसीर सुनकर भी इसे ना समझ आया कि भला नहर का पानी क्यों नहीं पीना था। पानी तो हराम नहीं होता, फिर क्यों? वो पूरा दिन यही सोचती रह गई। यहाँ तक कि रात जब मीठा लेने किचन में आई तो भी यही सोच रही थी। किचन खाली था। इसने फ्रीजर का ढक्कन खोला, फिर डिश के डोंगे निकाले, ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आई। तिलावत की आवाज इसकी समात में यूं ही गूंज रही थी। फिर जब तालूत अपने लश्करों के साथ जुदा हुआ, वो ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में आए। ऊंचे पौने झुके से सर और उठ जाती थी। कंधों पे फैलाया दुपट्टा और शफाफ चेहरे पे संजीदगी लिए इसने ट्रे टेबल पे रखी। सब वक्फे वक्फे से इसे ही देख रहे थे, मुतासिर जलन जदा निगाहें। इसने कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमाने वाला है। एक नहर के साथ वो खामोशी से ट्रे से डोंगे निकाल रही थी। पहला डोंगा इसने आगा जान के सामने रखा, तो जो कोई इस नहर से पिएगा वो मुझसे नहीं है। दूसरा डोंगा दोनों हाथों में ही उठाकर इसने टेबल के वश में रखा था, और जो कोई इस नहर से ना पिएगा सिवाय अपने हाथ से एक चुल्लू भर पानी के, वो बेशक मुझ में से है। इसने आखिरी डोंगा टेबल के आखिरी सिरे पे रखा और वापस अपनी कुर्सी पे आई, तो सिवाय चंद एक के उन्होंने इस नहर में से पी लिया। सो स्वीट डिश शुरू हो कर चुके थे। शीशे के प्यालों और चमचों के टकराने की आवाजें वक्फे वक्फे से आ रही थी। नवाजों के दरमियान वो मध्यम और मेहरबान आवाज भी इसके कानों में गूंज रही थी, और वो तो अभी तक दूर कहीं सवाज में खोई थी। तो सिवाय चंद एक के उन्होंने इसमें से पी लिया। इसने प्याला आगे किया और थोड़ी सी खीर अपने प्याले में डाली, तो सिवाय चंद एक के उन्होंने इसमें से पी लिया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चमचे ले रही थी। तो तुम्हें कब तक जाना होगा महमल? आगा जान ने पूछा, तो एकदम फिर से हाल में सन्नाटा छाया। चमचों की आवाज रुक गई। बहुत सी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी। इसने सर उठाया। सब इसकी तरफ मुतवज्जह थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर से पहले तक नहीं होगी? नहीं। क्या मतलब? आगा जान चौंके। मैं नहीं जा रही। इसने चम्मच वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ किए। क्या मतलब? तुम इतना बड़ा स्कॉलरशिप छोड़ दोगी? फिजा चच्ची ने तहय्युर से कहा था। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने इस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी उम्र इसी पे बैठी रह जाऊंगी और तालूत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज हलाल चीजें किसी खास वक्त में हराम हो जाती हैं। अगर इस वक्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर का काम करने वाले लोग दूर निकल जाते हैं। मैं नहर पे सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोच कर रह गई और कहा, तो बस इतना? मुझे अभी कुरान पढ़ना है। और तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा अपने ले पे बह रही थी। वो चाय का कप लिए टेरेस पे खड़ी कुर्सी डाले दूसरे आसमान को देख रही थी, जहाँ शाम के परिंदे अपने घरों को उड़ते जा रहे थे। टेरेस सामने वालों का घर नजर आता था, इन्हीं ब्रिगेडियर साहब का घर, जिनकी कुरान ख्वानी एक रोज इसने देखी थी। कुरान को भी पता नहीं था हम लोगों ने क्या क्या बना दिया है। इसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पे रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा था, सीने पे हाथ बांधे लब बेचे से देख रहा था। तुम मुझसे कतराती फिर रही हो, हालांकि तुम जानती हो मेरा कसूर नहीं है। वो चुप रही। कल दोपहर 3 बजे मैं स्टॉप पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आई होप कि तुम जरूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। महमल का रास्ता खुल गया था। वो बिना इसे देखे तेजी से दहलीज पार कर गई। एक कसम थी जो इसने खा ली थी, वो इसे तोड़ नहीं सकती थी। और इस लम्हे सीढ़ियां उतरते इसे महसूस हुआ कि शायद वो इस कसम के बोझ से अब निजात हासिल करना चाहती है। अब इससे वो कसम निभाई नहीं जा रही थी। बस एक दफा वो फवाद से बाहर मिल ले तो क्या हो जाएगा? बस एक दफा। कल दोपहर 3 बजे। नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। इसने घबरा कर सर झटका। इसके अंदर की सोचें इसे वहशत ज़दा करने लगी थी। फिर इसे याद आया वो टेरेस से भला क्यों नीचे आने लगी थी। और हाँ, वो कुरान ख्वानी वाला घर। वो कुछ सोच कर घर से बाहर आई। साथ वाला बंगला बेलों से ढका खूबसूरत बंगला था। इसने गेट के साथ नस बेल पर हाथ रखा, दुपट्टा शॉल की तरफ कंधों के गिर्द लपेटे, ऊंची खिंची कसी हुई पोनी तेल इधर उधर जलाती वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। कदम की चाप सुनाई दी और फिर गेट खुला। इसी मुलाजिम की शक्ल सामने आई। जी, ब्रिगेडियर साहब घर पे हैं? नहीं, पर आप कौन? मैं महमल इब्राहिम हूँ, साथ वाले घर में रहती हूँ, आगा हाउस में।
یہ کچھ پمفلیٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں، میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے، اگر امانت میں خیانت کی تو پرسرات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلیٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس سے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی، وہ لمحہ بھر کو بھی نہ سوچ سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری، مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے، اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، تو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارہ کا۔ کفارہ؟ وہ چوکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پوری سانس کی تقریباً توڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کے کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پوری سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے، میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہے نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتا؟ کہ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھنی ہے، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے، صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی اس آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ متشابہات کا پیچھے نہ ہی پڑنا چاہیے اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سسروی سے تمام پوائنٹ رجسٹر میں لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب، ایسا ہونا چاہیے۔ میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قسم پوری کرتی ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چیٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہو، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔
انگلیوں کے پوروں سے ان 3 الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی ان آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی ہی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی ٹیل کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پہ ذرا سی پسماردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی اور تھوڑی تک لپیٹ کر بالکل دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے دیکھا تو رک گئے۔ چلے، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یک کے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں فوج سے باہر سڑک پہ رواں دواں تھی۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی سمٹائی نگاہیں نیچے کی آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی۔ وہ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس سر پر کیپ وہ بہت وجیہ تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے ہوئی، سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی 22 نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک ساتھ وہ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چپتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بینچے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی؟ وہ ذرا سا الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر ہاں کیوں نہیں، یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئر کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے، باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورث تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے؟ میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے یہ چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تبھی میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف چلنے پڑی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھ کر کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔
वो निगाहें इन पे जमाए पलक झपके बगैर कुरान पे हाथ रख कर चंद फिक्रें दोहरा रही थी। उन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तेज में आकर इसे मोड़ कर 2 टुकड़े किए। मोहम्मद तल्खी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मुतवज्जा हुई। वो इससे कुछ पूछ रहा था। फवाद की जमानत मंसूख हो गई, उसके खिलाफ सबूत बहुत से थे, वो वापस जेल भेज दिया गया। वापसी का सफर बहुत खामोशी से कटा। वो आगाजान की लैंड क्रूजर की पिछली सीट पे बहुत खामोशी से सारा रास्ता बाहर देखती आई थी। जब कार फौज में रुकी तो वो सबसे पहले उतरी। लॉन में बहुत सी औरतें तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। क्या हुआ? वो किसी को देखे बगैर तेजी से अंदर चली गई। इस एहसान फरामोश लड़की ने फवाद के खिलाफ गवाही दे दी। जलील न हो तो, मगर फिक्र की बात नहीं है, वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। केस इतना मजबूत नहीं है। गुफरान चचा और असद चचा उन्हें तसल्ली देने लगे, मगर नताई मेहताब का चेहरा सफेद पड़ता गया। हाय मेरा फवाद! वो सीने पे 2 हथर मार कर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। रोते रोते वो लुढ़कने को थी कि फिजा नैमन ने बढ़कर इन्हें सहारा दिया। पल भर में लॉन में कोहराम मच गया। अपने कमरे में पर्दे को हाथ में पकड़कर जरा सी झीरी से देखती वो पुरसुकून खड़ी थी। काली चादर सर से फिसलकर पीछे गर्दन पे पड़े बालों पे फिसल गई थी। भूरे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे थे। वो कान सी सुनहरी आंखें सुखेड़े पुरसोच निगाहों से बाहर का मंजर देख रही थी। वो सुतून से टेक लगाए नंगे पांव घास पे रखे बैठी थी। जूते साथ उतरे पड़े थे। सफेद शलवार कमीज और सर पे गुलाबी स्कार्फ कस कर बांधे वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा कुरान लिए पढ़ रही थी। छुट्टी हो चुकी थी और लड़कियां इधर उधर गुजरती बाहर जा रही थी। इससे सूरह कहफ पढ़नी थी। आज जुम्मा था। अस्सलाम वालेकुम। सारा आहिस्ता से आई और इसके साथ पांव लटका कर सीढ़ी पे बैठी। इसने सफ़े का किनारा पकड़े सर के इस्बात से जवाब दिया और सफ़ा पलटा। सारा अपनी गोद में रखी असाइनमेंट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ते खड़ी एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की मिनमिनाते हुए कुछ कह रही थी, मगर फरिश्ते नफी में सर हिला रही थी। उसका अजली पुर एतमाद मजबूत और 2 टोक मगर नर्म अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्ते बाजी की असाइनमेंट हल कर रही हूँ। फरिश्ते बाजी ने दी है। उलझ कर सर उठाया। ये दीन और मजहब में क्या फर्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं, जैसे इस्लाम, और मजहब किसी भी दीन के किसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। जैसे इस्लाम में 2 मज़ाहिब हैं, अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युई। मसलक किसी मजहब के अंदर किसी तरीके का नाम होता है, मसलन फिक्री मसालिक जैसा कि शाफी, हनफी वगैरह। आई समझ? हूँ, तुम्हारा फहम अच्छा है मोहम्मद। फरिश्ते ने समझाया था इस दिन। इसने जरा सी गर्दन मोड़ी। फरिश्ते इसी तरह इससे बात कर रही थी। सारा भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में इसे देखने लगी। फरिश्ते की आंखें बहुत पसंद है मुझे। मोहम्मद के लबों से फिसला, हाँ बहुत मुशाबहत है। आई नो। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबहत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर इसकी तरफ मुड़ी। मुशाबहत है ना सारा? मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा है कि ये किसी से बहुत मिलती हैं। तुम्हें पता है किससे मिलती है? तो तुम्हें नहीं पता? राबिया हैरान हुई। क्या इनकी कजन है? कजन कौन? छोड़ो, तुम बताओ किस किस से मिलती हैं? राबिया कुछ देर हैरत से इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं मोहम्मद, बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? मोहम्मद साकित रह गई। अपना चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने नहीं रहता, शायद इसलिए वो इतने अरसे में अंदाजा न कर सकी। इस लड़की की किसी बात पे फरिश्ते जरा सी मुस्कुराई। इसकी आंखें मुस्कुराए हुए किनारों से जरा सी छोटी हो गई, बल्कि इसकी अपनी तरह हूबहू वो पलक झपके बिना इसे देखे गई। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए घुटनों पे किताब रखे सोच में गुम थी। बुरे बाल खुले शानों पे गिरे थे। मुसरत अंदर दाखिल हुई तो वो इसी तरह खला में घूर रही थी। आहट पे चौंकी। अम्मा बात सुने। हाँ बोलो। मुसरत अलमारी खोल कर कुछ तलाश कर रही थी। आप मामू लोगों से फिर कभी नहीं मिली? नहीं। इनके हाथ लम्हे भर को थमे, फिर दोबारा कपड़े उलट पुलट करने लगे। मामू की एक ही बेटी है ना? हाँ शायद। इसका नाम क्या है? पता नहीं, वो मेरी शादी के बाद हुई थी। वो मतलूबा कपड़ा निकाल कर खुले दरवाजे से बाहर चली गई। ये तो वो जानती थी कि अम्मा शादी के मामू से कभी नहीं मिली, ना ही वो खुद कभी इनसे मिली थी। इसने तो इनको देखा तक न था। अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी और अम्मा के खानदान वालों ने फिर कभी कोई राब्ता न रखा था। आज फरिश्ते की आंखें देखकर इसे यूं ही कुछ लगा था कि शायद, मगर खैर हमने फैसला कर दिया है। बाहर ताई के जोर से बोलने की आवाज से अगले मिस का दिल धड़का। वो किताब बंद की, लिहाफ उतार कर तेजी से नंगे पांव बाहर आई। इसने दरवाजा खोल कर देखा। आगा जान और मेहताब ताई बड़े सोफे पर रौनक भरे अंदाज में बैठे थे और मुसर्रत इनके सामने जैसे बेबस सी खड़ी थी। दरवाजा खुलने की आवाज से मुसर्रत ने इसे देखा। बेबसी आंखों में आंसू। अपनी बेटी को भी बता देना।
ताई ने एक तफाकुर भरे निगाह इस पे डाली। हम इसको बहू बना रहे हैं, हमारा एहसान सारी जिंदगी भी तुम दोनों चाहो तो नहीं उतार सकती। वो जहाँ भी वहीं खड़ी रहेगी। तो क्या फवाद वाकई जेल से बाहर आ जाएगा? मगर भाभी, मुसरत की आंसुओं में डूबी आवाज आई, महमल कभी नहीं मानेगी वसीम के लिए। वसीम? वो झटके से 2 कदम पीछे हटी। और ये चंद रोज पुरानी ही तो बात थी जब फरीदा फूफो ने घर आकर खूब मजे लेकर वसीम के चंद आंखों देखे किस्से सुनाए थे। फरीदा फूफो महमल के अब्बा की कजन थी और हर खबर सारे खानदान में सबसे पहले इनके पास पहुंचती थी। घर में तो चलो इनकी ताई ने चुप करा दिया, मगर हफ्ते बाद ही एक शादी की तकरीब में उन्होंने वही किस्से छेड़ दिए। अभी फवाद की गिरफ्तारी के चर्चे पुराने नहीं हुए थे कि खानदान वालों के हाथ एक और शोशा लग गया। पूरी तकरीब गोया अखाड़ा बन गई। ताई मेहताब इन औरतों को जितना लान तान कर सकती थी किया, मगर वो अकेली थी और मुकाबिल पूरा जत्था था। मायने खेज निगाहें और तंजिया अंदाज। बुरा न मानना मेहताब भाभी, मगर वसीम को मेरे समी ने ही नशे की हालत में रात के 2 बजे सड़क से उठाकर तुम्हारे घर पहुंचाया था। हाँ, तो समी खुद इस वक्त इधर क्या कर रहा था? ताई हाथ नचाते हुए गुस्से से बेकाबू होकर बोली, वसीम की बात बचपन से आगा जान के चचा जाद आगा सिकंदर की बेटी के साथ तय थी। कुछ अरसे से आगा सिकंदर की फैमिली खींची खींची सी रहने लगी थी और जब ये बातें मंजर आम पे आई तो उन्होंने फोन पे ही 2 टोक रिश्ता खत्म कर दिया। गुजरे बरसों की एक नादानी थी वो मेहताब भाभी, भला किस तरह हम अपनी बेटी को इस लड़के से ब्याह दें जिसे पूरे खानदान में कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं, और मैं भी आपको खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की वसीम की दुल्हन बनाकर दिखाऊंगी। ताई ने भी खोलते हुए फोन पटका था। महमल को काबू करने की जायदाद हासिल करने, वसीम को ब्याह कर खानदान में गर्दन ऊंची करने का बेहतरीन हल ताई को नजर आ ही गया था। उन्होंने एक तीर से 3 शिकार कर लिए थे। वो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। लंबे स्याह भूरे बाल शानों पे फिसलकर कमर पे गिर रहे थे। कहाँ किधर इसे कुछ पता न था। जिंदगी इसके साथ यूं भी कर सकती इसने सोचा भी न था। एक तंग फंदा जो इसे अपनी गर्दन के गिर्द कसता महसूस हो रहा था। उदास दरख्त की घनी बहार आज भी वैसे ही खड़ी थी। शाम के परिंदे शाखों पे लौट आए थे। वो रास्ता जाना पहचाना था। वो तेज तेज कदम उठा रही थी जब इसकी समातों ने वो आवाज सुनी, महमल रुको। मगर वो नहीं रुकी। इसे रुकना नहीं था, वो रुकने वाला रास्ता था भी नहीं। महमल, वो तेज दौड़ता इसके साथ आ मिला। बात तो सुनो। पूरी सांसों से इसके बाएं तरफ इसकी रफ्तार से वो मुश्किल मिल पाता वो हुमायूं था। ट्रैक सूट में मलबूस वो शायद जॉगिंग से आ रहा था। क्या हुआ है महमल, मुझे भी नहीं बताओगी? इसके कदम थमे। बहुत आहिस्ता से इसने गर्दन उठाई। भीगी सुनहरी आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। मेरा और आपका क्या रिश्ता है जो मैं आपको बताऊं? क्या इंसानियत का कुछ रिश्ता नहीं होता? कुछ नहीं होता। वो तेजी से चलने लगी थी। मगर हुआ क्या है? मेरी ताई ने मेरा रिश्ता अपने आवारा बेटे से तय कर दिया है। तो तुम रो क्यों रही हो? फिर क्या खुशी मनाऊं? वो पूरी तरह इसकी तरफ घूमी। गुस्सा बहुत शिद्दत से उबला था। यही शख्स था इसके हर मुश्किल का जिम्मेदार। ठीक है, तुम साफ इनकार कर दो, कुछ और कर लो, लेकिन अगर यूं अपने आप पे जुल्म सहती रोती रहोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। इसने भीगी आंखों से हुमायूं का चेहरा देखा, मगरूर मगर फिक्रमंद चेहरा। मैं मरूं या जीऊं आपको क्या फर्क पड़ता है? इसके अंदाज पे वो चंद लम्हे लब बेचे खामोश खड़ा रहा, फिर गहरी सांस अंदर को खींची। हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो वापस पलट गया। हाँ, महमल ने इस्तेज़ाए सर झटका। आप वही है ना बीच राह में छोड़ देने वाले? वो जैसे चौंक कर पलटा। इसी पल हवा का एक तेज झोंका आया था। इसके भीगे चेहरे के तरफ में गिरे बाल पीछे को उड़ने लगे थे। और आपको ये पता है हुमायूं, इसीलिए आपसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं लगाई। फिर क्या मैं ना रो? वो कहकर वापस पलट गई। हवा भी पलट गई, शाम के परिंदे भी पलट गए। वो साकित सा तारकोल की वीरान सड़क पे खड़ा रह गया। दरख्तों की बार अब भी उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। इसने स्टाफ रूम के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हे मुंतजिर से खड़ी रही, फिर जवाब न पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतवज्जह सी वापस पलट गई। इसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फरिश्ते किधर हैं? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी। इनको कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आ सकी। अच्छा। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगते लगी। लाइब्रेरी का ग्लास डोर खोला था। इसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक और दीवार की फर्निश्ड विंडोज, लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते, इसे हौले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ा कर चुप हो गई। इधर लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया। वो शर्मिंदा सी इधर लपकी।
चंद रेख से गुजरकर इसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पे ग्रे दुपट्टा, शानों के गिर्द लपेटे फरिश्ते की इस तरफ पुश थी। महमल को इसकी कमर पे गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो जरा सी हैरान हुई थी। इसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढक के पकड़े तो वो कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते वो जिसे चौंक कर मुड़ी, इसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी आए हैं, मगर सिर्फ आपसे मिलने। बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पे आ बैठी, जिसके सामने मेज थी। मेज के इस तरफ एक खाली कुर्सी रखी थी। वो महमल ने संभाल ली और किताबें मेज पे रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमल खामोशी से इसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल इसने कानों के पीछे कर रखे थे। दमकती रंगत वाला चेहरा और कांच सी सुनहरी आंखें। इसके नक्श मुख्तलिफ थे, मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो आईना देख रही हो। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया? महमल ने हल्का सा बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किसके लिए इनकार करूं? इसके लिए जो बीच राह में छोड़ जाता है। वो कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। ये तो भी इसने अपने दिल से भी नहीं कहा था। फरिश्ते से कैसे कहती? मैं क्यों इनकार करूं? क्या मैं सब्र करके अजर ना लूं? महमल, मजलूमियत और सब्र में फर्क होता है, और फर्क एहतिजाज करने का हक रखने का होता है, बजाय अपनी जिंदगी खराब करने के। तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो, साफ साफ इनकार कर दो। मुझे इनके रिएक्शन से डर लगता है, इसमें तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुजारा करना पड़ता है लड़की। आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते? आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स? इसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते थे। मेरी अम्मी की एक ही बहन थी, हुमायूं इनका बेटा है। इनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और मैं हॉस्टल में रहूं। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब इनकी डेथ हुई। आपके अब्बू की कोई बहन तो होंगी? इस अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यही इसी शहर में। वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर ईद पे इनके घर हो आऊँ, लेकिन वो मेरे ऊपर वाले दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर वो बिना पलक झपके से देखते आगे को हुई। फिर मैं केक और फूल देकर वापस आ जाती हूँ। मेरी इतनी इस्तेताअत है, आगे क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल? ईदों पे बहुत जगहों से मिठाई और केक और फूल वगैरह आते थे, क्या वो भी भेजती थी? आपके फूफो के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और इससे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। इसका तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या उम्र होगी इसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये जरूरी तो नहीं है महमल। फरिश्ते जिससे जरा सी मुस्तरब हुई थी। हो सकता है मैं आपकी फैमिलीज को मिलाने में कुछ मदद कर सकूं। नहीं, फरिश्ते ने बगौर से देख के नफी में सर हिलाया। तुम मेरी फुप्पो की बेटी को नहीं जानती। फिर भी क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? इसके असली ठोस और कतई अंदाज में वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये खिड़कियां बहुत खूबसूरत है, ये कहकर पुरसोच अंदाज में खिड़की के बाहर उतरती सुबह को देखने लगी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।